Hello friends, today we will discuss about the CET. CET is eligible for PCB and PCM students. In a CET, chemistry part is for 50 marks. That is the 50 questions are included for 50 marks. And there is no negative marking. No negative marking. So students, we have to attempt all the questions. Okay. So chemistry 50 questions. So now today we will discuss the one by one questions. Hello. So first question is, what is the calculated value of spin only magnetic moment in terms of Pm if only one unpaired electron present in a species? Actually students, I will give you some shortcut techniques. If one is present, it means here the answer will be this one. If two unpaired electrons are given, then there are the two possibilities. Okay, these are. If three, then there is no other options. Okay. So 2 means 2.84 or 86. 3 means 3.84 or 86. Likewise 4 point. So it means whatever the number of unpaired electron, that is the value of Bm, that is Bohr magneton. So now the question is, how will you find out? How will you find out the values for dipole moment, magnetic moment? Its value formula is mu equal to under root of n plus 2. What is n? N is number of unpaired electron. And in this numerical, how many unpaired electrons are given? Only one. One unpaired electron is given. Now place this one here. So under root of 1, 1 plus 2 is nothing but d. 2 plus 1, 3. 3 into 3. So under root of 3. And it's very difficult to learn the root value for each and every number. So that's why the shortcut is, if the unpaired electrons are given here, then find out this value. So the mu value equal to 1 point. After this decimal point, you can write number more than 6, 7 or 8. Okay. So our expected answer is 1.73 Bm. So the option D is correct. Second question, which of the following is tertiary allylic alcohol? Allylic alcohol. So as students, we know what is meant by allylic alcohol. Allylic alcohol or allylic halide. So allylic means what? The functional group which is binded to this carbon atom next to the double bond. This pattern is the allylic. Okay, this one. Functional group bonded to this carbon, next would be the double bond. Okay, ये पैटर्न आपको सबसे पहले ध्यान रखना है. फिर हमने कहा है कि भाई टर्शरी अलिलिक अल्कोहल. तब चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे कौन है. ऑप्शन ए प्रोप 2 in 1 ऑल प्रोप 1 2 3. अब टर्शरी पूछा है तो ये सीधा का सीधा प्रोप सीधा आ रहा है. टर्शरी का मीनिंग है कि यहाँ और यहाँ हमें क्या लगाने चाहिए, अल्काइल ग्रुप्स. अगर ये अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे आते हैं तो ही हम कहेंगे कि भाई ये हमारा टर्शरी ग्रुप है. तो क्या प्रोप में पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम प्रोप लेते हैं तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 1 2 3 4. तो ये पॉसिबल नहीं होगा. ए ऑप्शन. ना बी पार्ट, ब्यूट 3 in 2 ऑल ब्यूट. अगर हम इसको ब्यूट लिख देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूट 3 1 2 ऑल, तो ये नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन बराबर, ये जाएगा हाइड्रोजन. तो क्या ये पॉसिबल होगा टर्शरी के लिए? नहीं, क्योंकि टर्शरी के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई ऑल 3 एंगल्स हमारे कैसे होने चाहिए, कार्बन के साथ. तो हमें ये दोनों कार्बन चाहिए. तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बन रहा है. नाउ नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट के साथ. 2 मिथाइल प्रोप 2 in ऑल. तो 2 मिथाइल प्रोप, प्रोप कहाँ है? प्रोप, ब्यूट नहीं है, प्रोप. सो 2 मिथाइल 1 2 3 4. तो अगर हम इसको लिखते हैं 2 मिथाइल, तो प्रोप यहीं पे ख़त्म होता है. देखो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. तो ये भी पॉसिबल नहीं हो जाएगा. क्यों? अगर हम इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं तो कुछ ऐसा आएगा. प्रोप 1 2 3 ऑल 1 2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है. तो ये हो गया प्रोप 2 in ऑल. देखो एंड 2 मिथाइल 1 2, यहाँ पे आएगा मिथाइल ग्रुप. तो क्या ये पॉसिबल होगा टर्शरी? बिल्कुल भी नहीं. अब देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, ब्यूट 3 in. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन 1 2 3, 4 कार्बन इज here. Then 3 in 1 1 2 3, थर्ड पे डबल बॉन्ड ऑल.
सेकंड पे ऑल N2 लिखा है, 2 मिथाइल 1 2 2 मिथाइल। तो देखो ये जो है ये है हमारा टर्शरी वाला पैटर्न, तो जिसे हम कहते हैं टर्शरी अलिलिक अल्कोहल, क्योंकि अलिलिक मतलब ये कार्बन जो आप पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे है डबल बॉन्ड। सो द ऑप्शन इज डी। स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट यूज्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू ऑब्टेन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब बच्चों आपको पता है कि भाई फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल का रिएक्शन में अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो तो किस वाले सॉल्वेंट पे हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना। ये है क्वेश्चन आपका कि भाई यहाँ पे आप कौन सा सॉल्वेंट ऐड करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब 2,4,6 ट्राइब्रोमो है फिनॉल। दो ऑप्शन थे आपके टेक्स्ट बुक में, एक तो आता है ऑर्थो या पैरा पोजिशन। यहाँ पे 2,4,6 एट अ टाइम तीनों ब्रोमीन आए हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन जाएगा हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।